Hello students, come to revision of meiosis. Now you know meiosis is a reduction division. Reduction division in which the chromosome number is reduced to half. Remember half. जितने भी क्रोमोसोम ममा सेल के पास है, जितनी भी प्लॉइडी ममा सेल की है, उसकी हाफ प्लॉइडी बेबी सेल की रहेगी, उसके हाफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. So meiosis is reduction division in which the chromosome number is reduced to half. Remember half. Okay, see. Now the cell cycle, you must learn this. ये आपको रट्टा होना ही चाहिए. Okay, एक बार देख लो and tell me what is the mistake in this diagram. फटाफट देख के बोलो what is missing in this diagram. आपको रट्टा होना चाहिए तो आपने फट से मुझे इसमें का मिस्टेक दे. That's it. मिल गया, right? तो हमने क्या लर्न किया था? Meiosis is divided into meiosis 1, meiosis 2. Meiosis is divided into meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is further divided into interphase. Okay, interphase is divided into G1S G2 जो यहाँ पे लिखा नहीं है, point number 1. G1S G2 of meiosis is exactly similar which occur in mitosis. Mitosis में जो G1S G2 के phases है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल बनते हैं, वो सेम रहेंगे meiosis में भी. So the cell is preparing exactly similar way for meiosis and the entire preparation which we have discussed, entire interface which we have discussed in mitosis is the same here. So वो सब आप जानते हो. जीवन में सेल की ग्रोथ होगी, वो सेल डिवीजन का डिसीजन लेगा चेक पॉइंट पे. जीवन का चेक पॉइंट आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट है. देन इट विल गो फॉर एस फेज. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा. डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जीवन के लेट एंड, जीवन के एंड में जो नए न्यूक्लियोटाइड बने वो एक दूसरे को जुड़े जाएंगे और डीएनए का पॉलीमर बनेगा. ओके, सो डीएनए कंटेंट डबल अप, क्रोमैटिन कंटेंट डबल अप इन एस फेज, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. G2 में एटीपी बनाना, बाकी के केमिकल ये सब हो जाएंगे एंड प्रिपेयर्ड सेल विल गो फॉर द एम फेज. एम फेज का यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस है, वो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है. दे डायरेक्टली रोट इंटरफेज एंड कैरियोकाइनेसिस, बट कैरियोकाइनेसिस ऑफ एम फेज, साइटोकाइनेसिस ऑफ एम फेज. ओके, तो ये सब डिवीजन भी ये डायग्राम में मिसिंग है. इस प्रकार का एमसीक्यू आपको आएगा. हाउ मेनी एरर्स आर देयर in this diagrammatic representation? Okay, so error number 1, G1S G2 is not mentioned. Error number 2, karyokinesis and cytokinesis are subphases of M phase. M phase is further divided into karyokinesis and cytokinesis. Okay, karyokinesis is involving pro1, meta1, ana1, telo1. It is correct. But one more mistake is pro1 is divided into lip, zip, patchy, patchy. Got that? Patchitine is missing. Right? Diplotin dikinesis. So prophase 1 is divided into lip, zip, patchy, dip, di. Prophase 1 is divided into lip, zip, patchy, dip, di. ये हमने अच्छे से लर्न किया. ओके, तो हमने ऐसे लर्न किया था G1S G2 Pro 1 divided into lip, zip, patchy, dip, di. Then followed by meta 1, ana 1 and telo 1. Okay, telophase 1 हो गया तो सेल परफॉर्म करेगा साइटोकाइनेसिस. And after completion of cytokinesis, it will take a little break. Okay, that is called interkinesis. Interkinesis is not a preparatory phase. Interkinesis and interphase are pole apart. They are not exactly similar. Interphase में सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, बहुत काम करता है. दिखने में वो आपको लगता है शांत है, दिखने में लगता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत मेटाबॉलिज्म कर रहा है. इंटरकाइनेसिस में दिखने में भी वो कुछ काम नहीं कर रहा है और एक्चुअल में भी वो काम नहीं कर रहा है. So interkinesis is a small break between meiosis 1 and meiosis 2. Sometimes it is there or sometimes even it is not. It is kept. So interkinesis has no significance and interphase is the important phase, most significant. Because of interphase, the total process occur. Interphase नहीं हुआ, सेल ने प्रिपेयर नहीं किया, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं किया, तो कौन से भी प्रकार का सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता. अंडरस्टूड, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इंटरकाइनेसिस. आफ्टर दैट द सेल विल गो फॉर meiosis 2, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. बराबर? सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू meiosis 2 का एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू pro 2, meta 2, ana 2, telo 2
and ultimately it goes for cytokinesis. So ये सीक्वेंस आप लोगों को याद होना ही चाहिए. चलो एडिशनल पॉइंट, आपको मैंने एक हाथ लेक्चर में ये बोला है मियोसिस सिखाते वक्त कि ये साइटोकाइनेसिस के आगे क्वेश्चन मार्क दे दो. देखिए ये लोकेशन पे क्वेश्चन मार्क दे दो, मतलब मियोसिस 1 के बाद होने वाला साइटोकाइनेसिस के आगे क्वेश्चन मार्क है. मीन्स ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. ओके, सो व्हाट इट मीन्स, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा. अगर ऐसा होता है तो सी, सेल ने इंटरफेस किया, थोड़ा इमेजिन करो, सेल ने इंटरफेस किया, सेल प्रिपेयर हो गया. ओके, उसने प्रो 1 में पूरा क्रॉसिंग ओवर लिप जिप पैची डिप डाई कंप्लीट किया. मेटाफेज 1 में रिकॉम्बिनेंट डायड आर अरेंज्ड एट इक्वेटोर, रिकॉम्बिनेंट बायवैलेंट टेट्राड आर अरेंज्ड एट इक्वेटोर. एना 1 में एक डायड ऊपर, दूसरा डायड नीचे, डायड होमोलोगस डायड सेपरेट. टेलोफेज में एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बने. इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं तो देखो आपकी डायग्राम, कर पा रहे हो ना, वेरी गुड, राइट. सो ओके, जैसे हम बार बार फोटोग्राफिक मेमोरी की बात करते हैं, आपके आंखों के सामने डायग्राम आना चाहिए. तो टेलोफेज में आपको एक सेल में 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, दोनों सेल में डायड है और वो रिकॉम्बिनेंट डायड है. ओके, सो 1 cell is with 2 nuclei, telophase 1. If it goes for cytokinesis, then you get 2 cells. If it doesn't go for cytokinesis, then you get a cell with 2 nuclei. Means what possibility you are getting here? आपको यहाँ पे क्या possibility मिल रही है कि cytokinesis ये अगर हुआ, cytokinesis अगर हुआ तो मियोसिस 1 के अंत में 2 सेल मिलेंगे. साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो मियोसिस 1 के अंत में हमको एक सेल में 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, राइट. ओके, और ये सेल आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा. सो द फेजेस शुड बी लर्न, आपको सीक्वेंस पता हो, राइट. और ये 2 प्रकार के जो मियोसिस में भी ये बोल रही हूं उसका डायग्राम देखते हैं, जिसमें ये साइटोकाइनेसिस का क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन होगा. सो प्लीज रीड इट वन मोर टाइम एंड फाइंड आउट इफ एट ऑल इज देयर एनी मोर एरर्स इन इट. चलो गो थ्रू इट. दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मियोसिस जो हमने अभी बोला, जिसमें सेल प्रिपेयर, then perform karyokinesis. 1 cell is with 2 nuclei. चलो बोलो ये कौन से फेज में है. 1 cell with 2 nuclei, जिसमें एक न्यूक्लियस में डायड है और वो भी रिकॉम्बिनेंट है, बराबर है. तो इसको हमने अभी क्या बोला था, दिस इज इन टेलो 1 की कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ऐसा जंप करके हमको रिकलेक्ट करना है. हर बार सिक्वेंशियल ध्यान में रखो, सिक्वेंशियल नहीं, एक बार सिक्वेंशियल ध्यान हो गया तो बाद में हमको जंप करके भी याद आना चाहिए. So this is a cell which has completed karyokinesis 1 and now it is in telophase 1. After telophase 1, if it follows cytokinesis, you get a cell with 1 nucleus and product of meiosis 1 is 2 haploid cells. यहाँ पे क्या बने, ये एक सेल बना जिसके पास एक न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड है, ये दूसरा सेल बना उसके पास दूसरा न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड है, बराबर. So these are the 2 cells produced at the end of meiosis 1. Now the cell will go for meiosis 2. Meiosis 2 में होगा karyokinesis 2. Karyokinesis 2 means ये एक सेल जो है ये वाला, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई बन गए, ये दूसरा सेल है, दूसरे वाला इसमें 2 न्यूक्लियाई बन गए. तो अब ये दोनों सेल है टेलोफेज 2 में. अगर आपको ओरिजिनल मियोसिस समझ में आया है तो आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आने चाहिए. समझ रहे हो, राइट. ओके, नहीं तो हमको फिर से ओरिजिनल मियोसिस के लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे. देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिवीजन में ये समझना चाहिए. सो हियर यू गेट अ सेल at the end of meiosis 1, you get 2 cells. 2 cells perform meiosis 2. Okay, at telophase 2, 1 cell is with 2 nuclei, another cell is with 2 nuclei, and now the cell is going for cytokinesis 2. And at the end of meiosis 2, at the end of complete meiosis, you get 4 baby cells, each one uninucleate and haploid if the mother cell is diploid, because just now what we said,
Meiosis is the chromosome number is reduced to half, hence it is called reduction division. So अगर मदर सेल 2n है तो ये चारों सेल n है, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. अगर ममा सेल 4n है तो ऑब्वियसली बेबी सेल हाफ, मतलब 2n के होंगे. समझ रहे हो? राइट? ओके. अगर ममा सेल 6n है तो आपको बेबी सेल्स 3n के. अब मैं जानती हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है. अगर ममा सेल 5n है तो ओके, चलो कंसीडर करते हैं वो भी एग्जांपल. इफ द ममा सेल इज 5n, it is not an even ploidy, so it cannot be divided into half. ओके, सो 5n है मतलब आप जानते हो कि इसके पास 5 एक जैसे क्रोमोसोम है. ये कॉन्सेप्ट सब समझ रहे हो? हैप्लॉइड डिप्लॉइड अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से समझाऊंगी. ओके, डाउट सेशन में पूछना है. ओके, या फिर पर्सनली आके मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम प्लॉइडी सीखेंगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आगे जाके आपको बहुत अप्लाइड फील्ड में इसका बहुत ज्यादा काम है. तो अगर 5 क्रोमोसोम एक जैसे है तो वो पेंटाप्लॉइड. अगर 2 क्रोमोसोम एक जैसे है तो वो है डिप्लॉइड. अगर 3 क्रोमोसोम एक जैसे है तो वो है ट्राइप्लॉइड. ये सब आप जानते हो, सिंपल बेसिक. 2 क्रोमोसोम एक जैसे डिप्लॉइड, 3 क्रोमोसोम एक जैसे ट्राइप्लॉइड, 4 क्रोमोसोम एक जैसे टेट्राप्लॉइड, 5 क्रोमोसोम एक जैसे पेंटाप्लॉइड. Got it? Right? So this is how, this is a pentaploid cell, this is a triploid cell. Okay, चलो अब सबका meiosis कंसीडर करते हैं. अगर 2 एक जैसे है तो ऑब्वियसली ये डिप्लॉइड सेल है, इवन प्लॉइडी है, तो ये हाफ n ऐसे 4 सेल बनाएगा. ओके, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. meiosis 1 में आपको 2 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, meiosis 2 में आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे. Because chromosome number is even, its distribution to half is possible. But when the cell is 5n or 3n, its distribution to half is not possible. आप बोलेंगे क्यों नहीं मैडम? 2.5. Okay, means what you are trying to tell me कि ये दोनों को इधर दे दो, ये दोनों को इधर दे दो और बीच वाले को हाफ कर दो. ऐसे नहीं होता. क्रोमोसोम का बंटवारा हाफ नहीं होता. अगर वो हाफ में बट गया तो बहुत ज्यादा डिरैंगमेंट आएंगे, जेनेटिक डिजीज होंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आएंगे. आप बोलेंगे मैडम क्यों? तो गेट इट. देखो, ये 2 क्रोमोसोम, इसके पास जो लाइफ इसेंशियल जीन्स है वो गए एक सेल के अंदर. ओके, जिसके पास लाइफ इसेंशियल है ये गए ये सेल में, और ये जो आधा टूट गया तो हाफ इधर गया, तो ये 2 जीन गए, ये 2 जीन इधर जाएंगे. ओके, ये 2 जीन इधर जाएंगे ही नहीं ना. मियोसिस में हमेशा लाइफ इसेंशियल क्रोमोसोम पहले डबल होते हैं और फिर हाफ में बंटते हैं. बराबर, पहले डबल होते हैं फिर हाफ में बंटते हैं. ओके, सो ये कंडीशन में ये क्रोमोसोम के जीन्स आधे ये सेल में जाएंगे, आधे वो सेल में जाएंगे, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आएंगे. एंड एक्चुअल स्पीकिंग, रियलिटी में क्रोमोसोम ऐसा आधा कभी नहीं टूटता. ओके, तो क्या होगा? एक सेल में 3 क्रोमोसोम्स जाएंगे, राइट, और दूसरे में 2 क्रोमोसोम जाएंगे. दिस विल अगेन लीड टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, राइट. तो ये सेल के पास एक क्रोमोसोम कम है, तो ये सेल अगर एग है या गैमेट है, ओके, स्पर्म है, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके पास एक क्रोमोसोम कम है. पूरा एक क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में कम होना तो अलग अलग डिजीज एबनॉर्मेलिटीज आते हैं. So when the ploidy is uneven, the meiosis is non-functional, or if meiosis occur, it leads to non-viable gametes, and then they don't participate in the process of fertilization. Okay, so even ploidy वाले सेल में meiosis होगा, uneven ploidy वाले सेल में meiosis नहीं होगा. ये फैक्ट है कि इसके डिटेल्स आप आगे जाके जेनेटिक डिसऑर्डर में सीख लेंगे. Right? So see, what we discussed, that in meiosis, one very common question is asked that how many karyokinesis and how many cytokinesis occur. So ये typical type meiosis है.
जो आपके एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों में मेंशन किया है. Okay, so see, in a typical meiosis, how many karyokinesis occur? Meiosis 1 में एक karyokinesis, meiosis 2 में दूसरा karyokinesis. Meiosis 1 में एक cytokinesis और meiosis 2 में दूसरा cytokinesis. So simply we said, in the process of typical meiosis, karyokinesis occurs twice, cytokinesis occurs twice. Okay, लेकिन interphase में यहाँ पे S phase में DNA replication occurs once. DNA replication occurs once. Okay, तो ये सीक्वेंस पे हमेशा एमसीक्यू पूछा जाएगा. Which among the following statement is true? Or what are the calculations related to meiosis? Meiosis, typical meiosis always involve DNA replication once, then karyokinesis twice, and cytokinesis twice. Okay, so sequence कैसा है? DNA replication, karyokinesis, cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis. Okay, and remember, DNA replicates in interphase, not in interkinesis. Okay, चलो याद है interkinesis, meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में ये जो छोटा सा ब्रेक है, इसको हमने बोला था interkinesis. और interkinesis में DNA replication नहीं होता. Got it? Right? So this is what is the sequence. Now, what is other type of meiosis जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, सो सीख लेंगे. ये ममा सेल है, इसने पूरी प्रिपरेशन कर ली, इंटरफेस कंप्लीट कर लिया, DNA रेप्लिकेट हो गया. ओके, फिर ये करेगा कैरियोकाइनेसिस 1. ओके, फिर ये करेगा कैरियोकाइनेसिस 1. तो आपको मिलेगा 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियाई. द सेल इज इन टेलोफेज 1. द सेल इज इन टेलोफेज 1. व्हाट दैट? अब देखो, ये सेल नो साइटोकाइनेसिस, नो को देखना अच्छे से, इट डजंट परफॉर्म एनी साइटोकाइनेसिस. ओके, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं करता है तो सेम सेल, 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियाई विल एंटर इन meiosis 2. बराबर. तो यहां से meiosis 2 की शुरुआत हो गई. ये meiosis 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 की शुरुआत हो गई. तो meiosis 2 में एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रहा है जो 2 न्यूक्लियाई पकड़ के रखता है. अब इसने फिर से कैरियोकाइनेसिस किया, कैरियोकाइनेसिस 2 किया, तो आपको मिलेगा एक सेल जिसके अंदर 4 न्यूक्लियाई है. Right? Okay, and then it will go for cytokinesis. Then it will go for cytokinesis, and ultimately cytokinesis कैसे होगा? देखो, एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियाई ऑलरेडी है. ओके, और साइटोकाइनेसिस लास्ट में हो गया, तो हमको फिर से 4 सेल मिले जो हैप्लॉइड है. तो दोनों प्रोसेस कंपेयर करके देखो, यहां पे भी आपको एंड में 4 सेल मिले जो हैप्लॉइड है. ओके, लेकिन साइटोकाइनेसिस एक ही बार हुआ. यहां पे भी आपको 4 सेल मिले जो हैप्लॉइड है, यहां पे साइटोकाइनेसिस 2 बार हुआ. राइट? सो कम बैक टू वर्किंग इंस्ट्रक्शन. दिस meiosis is not explained in NCERT, but at higher level these questions can be asked. Okay, so जिनको ये प्रोसेस समझा, वंडरफुल. नहीं, भूल जाओ, नॉट इन योर सिलेबस. व्हाट इज अ टिपिकल meiosis? Typical meiosis involves DNA replication once, karyokinesis twice, cytokinesis twice. Got it? Right? So ये हमको कैलकुलेशन के लिए ध्यान में रखना है. This is, I said, as not in syllabus, hidden content, लेकिन क्वेश्चन बाहर आएगा. आउट ऑफ सिलेबस की चिंता रहती है ना आपको हमेशा, आएगा तो क्या आएगा. तो यहाँ पे आ सकता है जहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस स्किप हो गया. तो आई रोट हियर नो साइटोकाइनेसिस. तो व्हाट इज द सीक्वेंस? डीएनए रेप्लिकेशन 1, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा कैरियोकाइनेसिस, एंड एट द एंड साइटोकाइनेसिस. अंडरस्टूड? प्लीज कंपेयर द डायग्राम. आपको इस पे जोर देना है. आई रिपीट, इस पे जोर देना है.